So here we have chapter number sixth chapter, religious and social awakening in a colonial India. Right. Let us start with the conversation between Mimi, a 13 years old girl, and her grandmother. उन दोनों के बीच में का एक ये conversation है. उसके बाद हम लोग chapter start करते हैं. Mimi, which college did you go to? The grandmother. Grandmother smiling. I never went to college, my dear. I only studied up to the class 6 and was married when I was of your age. Mimi shocked. Married at 13? This is illegal. Grandma, did you not protest? Grandmother, things were different at that time. Besides, many of my friends got married at the same age. ये कन्वर्सेशन है मिमी और उसके ग्रैंडमदर के बीच में. सो एट द एज ऑफ 13 मिमी उनके ग्रैंडमदर को ये क्वेश्चन कर रही है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे. मिमी उनके ग्रैंडमदर को पूछ रहे हैं. सो ग्रैंडमदर उनके सामने स्माइल करते हैं और उन्हें स्माइल के साथ रिप्लाई देते हैं कि आई नेवर वेंट टू द कॉलेज. वो किसी कॉलेज में नहीं गए थे और दे ओनली स्टडीड अप टू 6th क्लास. उन्होंने 6th क्लास तक पढ़ा है. उसके बाद उनकी 13 इयर्स के एज में ही उनकी शादी हो गई थी, जिस एज के मिमी अभी है. सो मिमी शॉक. मैरिड एट 13, दिस इज इलीगल. ग्रैंडमा, तो मिमी इस चीज को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये चीज इलीगल है. ये मिमी को पता था. राइट. Things were different at the time. Besides, many of the friends get married at the same age. तो उस वक्त ये सारी चीजें अलग हुआ करती थी और उस एज में उनके जो फ्रेंड्स थे उनकी भी कईयों की शादी हो गई थी. तो ये चीज सुनकर this made Mimi curious about the practices prevalent in the society. When her grandmother was child, she also wondered how things changed over a period of time. Who were people responsible for bringing this change? Mimi wanted to know all this and more. This is the lesson. You will read how reforms were introduced in 19th and 20th century in India. So in ये conversation को सुनकर मिमी curious हो गई, जानने के लिए उत्सुक थी कि उस वक्त और आज के टाइम में कितना डिफरेंस है. राइट. कि कौन लोग थे जिसकी वजह से ये सारे रिफॉर्म्स हुए, जिसकी वजह से इतनी सारी चेंजेस आई. सो ये सब चीजें जानने के लिए she was excited और curious थी. So let us know. Society in the early 19th century है in India. Society which you see in 2012 is very different from the one in the first half of 19th century. Two major social causes prevented the society's progress. There were lack of education and subordination of women. Many sections of the Indian society were rigid and followed certain practices which were not in keeping with the humanitarian values. तो उन्होंने बताया कि 2012 ये जो 19th century का फर्स्ट हाफ उसको कंपेयर करते हुए if we talked about 2020, राइट. तो 2020 और वो 19th century का वो टाइम कितना दोनों में डिफरेंस होगा. वास्ट डिफरेंस. कितनी सारी चीजें चेंजेस होंगी. राइट. तो सोसाइटी जनरली ये दो कारणों की वजह से उन्होंने बताया है कि सोसाइटी का प्रोग्रेस नहीं हो रहा था. राइट. सो लेट अस मूव कि लैक ऑफ एजुकेशन. मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन दोस डेज वर इलिटरेट. सबसे बड़ी चीज उस टाइम की ये थी कि उस वक्त सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ लोग जो थे वो इलिटरेट थे, मतलब कम पढ़े लिखे थे अच्छे से, तो उनको एजुकेशन नहीं मिला करता था. All over the world, education was in the hands of a very small number of people. बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे. Right. In India, also education was limited to the handful of men belonging to the upper caste. Brahmins in India had access to the Vedas, which were written in Sanskrit. अब उसमें upper level के जो Brahmins जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान हुआ करता था, जिनको वेद जो हमारे होते हैं वेदास, जो उनके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज था, जो संस्कृत में लिखा हुआ था. It was the language known only to them. Religious texts were also controlled by these people, so they interpreted them in a way that benefited them. Expensive rituals, sacrifices, and practices after the birth and death were outlined by this priestly class. It was mandatory for everyone to perform these rituals in the belief of better life after death.
Nobody could question the Brahmins' prejudice because nobody knew what was written in the scriptures. Similarly, in Europe, the Bible was written in Latin. It was the language of the church, and their priests interpreted the language's text or accordingly. And that is why, as a reaction, Europe saw the Renaissance and the Reformation movement about which you have read earlier in this book. Even ideas like liberty, equality, freedom and human rights were introduced in Europe by various revolutions which took place then. मतलब यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में ये चीज के बारे में बताया गया है कि पहले के लोग सबसे ज्यादा लोग जो पढ़े लिखे थे वो ब्राह्मण लोग, जिनको संस्कृत में सारे वेदास का नॉलेज था, उसके अकॉर्डिंगली वो लोगों को भी बताया करते थे। लाइक बहुत सारे रिचुअल यहाँ पे बताया हुआ है कि रिलीजियस टेक्स्ट वर आल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस पीपल, सो दे इंटरप्रेटेड देम इन अ वे दैट बेनिफिटेड देम। सो वो रिलीजियस वे को, वो संस्कृत लैंग्वेज उनको ही पता थी, इसलिए वो इस तरीके से लोगों को बताया करते थे जिसकी वजह से उन्हें बेनिफिट हो। जो चीज बता रहे हैं तो उन्हें उस चीज का बेनिफिट। एक्सपेंसिव रिचुअल्स, सैक्रिफाइस एंड प्रैक्टिसेस आफ्टर बर्थ एंड डेथ वर आउटलाइंड बाय द प्रीस्टली क्लास। तो ये लोग क्या करते थे कि लोगों के पास से बहुत सारे बड़े-बड़े आफ्टर डेथ की जो सारी चीजें हुआ करती थी, जो बताया हुआ है कि बेनिफिटेड देम एक्सपेंसिव रिचुअल्स कराया करते थे, बहुत ज्यादा बड़े-बड़े ऐसे फंक्शंस कि जिसकी वजह से उनको एक्सपेंस हो, राइट, कि आफ्टर डेथ कि उनकी जो लाइफ है वो आफ्टर डेथ अच्छे से स्पेंड कर पाए। इट वाज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू परफॉर्म दिस रिचुअल्स इन द बिलीफ, ये मानकर कि ऑफ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के आफ्टर डेथ उनकी लाइफ अच्छी रहे, जो जहां कहीं भी है वो उनकी लाइफ अच्छी रहे, इस वजह से वो सारी रीति नियम के हिसाब से वो सारी पूजा वगैरह करवाया करते हैं। Nobody could question the Brahmins' prejudice because nobody knew what was written in the scriptures। तो और कोई लोग उनको क्वेश्चंस नहीं कर पाते, वो ब्राह्मण्स को कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो लैंग्वेज थी, संस्कृत लैंग्वेज, वो सिर्फ उन ब्राह्मण लोगों को ही पता चलती थी, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो उन्हें नहीं पता चलता था। स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है वो भी उन्हें पता नहीं चलता था, इसलिए ब्राह्मण जो बोलते थे वही चीज सही हुआ करती थी। सिमिलरली इन यूरोप द बाइबल वाज रिटन इन लैटिन, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ चर्च एंड दिस प्रीजुडिस इंटरप्रेटेड द रिलीजियस टेक्स्ट अकॉर्डिंगली। तो यूरोप में जो बाइबल लिखा गया वो भी लैटिन में था, और वो लैंग्वेज चर्च और प्रीजुडिस वो लोग यूज किया करते थे, इंटरप्रेटेड द रिलीजियस टेक्स्ट अकॉर्डिंगली। तो वो रिलीजियस टेक्स्ट को इस तरीके से ही अकॉर्डिंगली सामने वालों को बताया और समझाया करते थे। And that is why, as a reaction, Europe saw a Renaissance and Reformation movement about which you have read earlier in this book. Like liberty, equality, freedom, and human rights were introduced in Europe by the various revolutions which took place there. मतलब ये सारी चीजें इसके वजह से देखने के लिए मिली, मतलब लिबर्टी हुआ, इक्वलिटी देखने मिली, लोगों को फ्रीडम के बारे में पता चलने लगा, फ्रीडम मिलने लगा, ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलने लगा। तो ये सारी चीजें, ये जो टेक्स्ट कंटेंट जो था ये यूरोप में इस वजह से फैलाया गया या देखने मिलने लगा। पोजीशन ऑफ वुमेन क्या थी? तो गर्ल्स एंड वुमेन्स टुडे हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट, दे हैव मोर फ्रीडम टू स्टडी एंड वर्क आउटसाइड ऑफ द होम। हाउएवर, back in the 19th century, the life was much harder of majority of the women. Certain social practices like female infanticide, child marriages, sati pratha and polygamy were prevalent in some sections of Indian society. मतलब आज जो टाइम है जब फीमेल्स को जो ये गर्ल्स वुमेन्स, इन लोगों को आज के टाइम में बेटर अपॉर्चुनिटीज है कि वो बाहर जाकर जॉब कर उनकी खुद की लाइफ, खुद इंडिपेंडेंट बनकर उनकी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें पहले थी, नो, ऐसा कुछ भी पहले नहीं हुआ करता था। मोर फ्रीडम टू स्टडी एंड वर्क आउटसाइड ऑफ द होम, अब वो लोग फ्री है, उनको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जहाँ पे वर्क करना है वो लोग अपने हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें पहले नहीं थी। पहले के टाइम में सर्टेन सोशल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल इनफेक्टिसाइड, चाइल्ड मैरिजेस हुआ करते थे, सती प्रथा चलती थी, पॉलीगैमी वर प्रिविलेज इन द सम सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सारे को भी चेंज किया गया। फीमेल इनफेक्टिसाइड और किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिसेस।
उस वक्त मतलब इफ अ बेबी गर्ल उनका बर्थ होता है तो उसे किल कर दिया जाता था, राइट। तो ये भी एक गलत, एक वेरी कॉमन प्रैक्टिस था उस वक्त, कॉमन चीज थी पहले के लोगों के अंदर, वो देखने मिलता था हमें। गर्ल्स who survived were often married at the very young age and often to men who were much older। बहुत कम एज में किसी भी गर्ल की शादी करवाई दी जाती थी, वो चाहे फिर उसके सामने अगर उनकी एज ज्यादा होती है तो भी उनकी शादी करवा दी जाया करती थी। Many castes and religions in some parts of a country, sati pratha was practiced in which a widow woman was compelled to burn herself on the funeral pyre of her husband। ठीक है, ऐसी सारी चीजें भी हुआ करती थी। Those women who could escape the practice of sati had to live a very miserable life। जो अब उनके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उन्हें बहुत नॉर्मल सी लाइफ, अ टाइप ऑफ सती उनको उनकी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती थी। वो किसी अच्छे फंक्शंस में इंक्लूड नहीं हो पाते थे, सोसाइटी के किसी भी फंक्शंस में वो इंक्लूड नहीं हो पाते थे। उनको अकेले ही घर पर रहकर उनकी सारी चीजें, उनकी लाइफ उनको स्पेंड करनी पड़ती थी। वुमेन हैड नो राइट्स टू प्रॉपर्टी, they also had to access to education। Thus in general women had a subordinate position in the society। in short इतना कह सकते हैं कि women की जो status था वो बहुत कम था। पहले के ज़माने में women को इतना ज़्यादा importance नहीं दिया जाता था। The other reason why dowry and sharing of ancestral property which further destroyed their status। ये इन कारणों की वजह से उनका स्टेटस भी ऊपर नहीं आया करता था। ना तो उन्हें अच्छे से एजुकेशन दिया जाता था, ना उन्हें किसी भी चीज में पार्ट लेने दिया जाता था, उनको जॉब करने का अलाउ नहीं था। इस वजह से वो उनका खुद का स्टेटस भी क्रिएट नहीं कर पाते थे। यदि आप अ डिजायर टू चेंज, साइको रिलीजियस अवेकिंग, ये आप थोड़ा फॉर नॉलेज आप इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। द कास्ट सिस्टम, एक कास्ट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर नॉलेज। सिंस एंशिएंट टाइम इंडियन सोसाइटी हैज अ कास्ट सिस्टम व्हिच वाज ओरिजिनली ऑक्यूपेशन बेस्ड। एक कास्ट सिस्टम हो गया, इवन टुडे आल्सो हमें डिफरेंट कास्ट देखने मिलती है। तो ये ऑक्यूपेशन के बेस्ड ये कास्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट बाय द अपर कास्ट एंड लैक ऑफ एक्सेस टू द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बाय द लोअर कास्ट लीड टू सर्वर सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ रिलीजन। इन द नेम ऑफ रिलीजन अलग-अलग धर्म प्रथाओं के हिसाब से डिफरेंट कास्ट उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से डिफरेंट कास्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। दिस आल्सो रिजल्टेड इन द पावर बीइंग कंसंट्रेटेड इन द अपर कास्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लोअर कास्ट। इसमें अपर क्लास एंड लोअर कास्ट दो क्लास मेंशन की गई, जिसमें अपर क्लास में लोगों के पास बहुत अच्छे पावर्स हुआ करते थे और लोअर क्लास पीपल जो थे, लो कास्ट जो आते थे, उनके पास इतनी पावर्स नहीं हुआ करती थी। Hindu society was based on the Varna system, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra। According to the system, people were divided on the basis of their occupation। Occupation के basis से लोगों को divide किया जाता था। The people who were engaged in praying and worshipping the God were categorized as a Brahmins। अब जो लोग भगवान की पूजा या पूजा करवाया करते थे उन लोगों को ब्राह्मण्स इस तरीके के एक कैटेगरी में रखा गया, लाइक एक कास्ट क्रिएट की गई कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, प्रेइंग करते हैं और वर्शिप करते हैं, उन लोग को हमने कैटेगरी दी लाइक ब्राह्मण्स। Those who were engaged in the wars were called क्षत्रिय। जो वार्स में ज्यादा इंक्लूड हुआ करते थे, जो वार्स में ज्यादा बिलीव करते थे, उसमें ज्यादा इंक्लूड हुआ करते थे, उन लोगों को हमने क्षत्रिय। Those whose occupation was agriculture and trading were known as वैश्य। जो लोग ट्रेडिंग किया करते थे या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, कि जो लोग अनाज को पकाते थे और उसे बेचकर पैसे कमाते थे या फिर कोई ट्रेडिंग करते थे, कोई चीज का लेन देन किया करते थे, तो they were come under the वैश्य। and those who used to serve the upper three varnas were known as शूद्रस। अब ये इन तो ऊपर तीन ये कैटेगरी वालों को जो
trading were known as those who used to serve. अब इन लोगों को जो सर्व किया करते थे, इन लोगों को हम लोगों ने शूद्रास ऐसा बोला. This caste system which was purely based on occupation, ये पूरी की पूरी तरीके से occupation based हम लोगों ने ये चार डिवाइड किए, had become a heredity. A person born in particular caste could not change his or her caste even though they might have changed their work. अब थोड़े टाइम गुजरने के बाद क्या होने लगा कि अब जो न्यू जो पर्सन, अब नया जो बॉय बेबी या गर्ल बेबी जो नए आ रहे हैं और वो अपना कुछ अलग वर्क कर रहे हैं, तो फिर भी उसमें उनकी कास्ट तो चेंज नहीं होती है, कास्ट वही की वही रहती थी. वो अगर उनका वर्क चेंज कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी कास्ट तो वही रहेगी. This created an inequality in the society. अब इसके वजह से क्या होने लगा कि inequality सोसाइटी में देखने मिल रही थी. It also lead to the exploitation of lower caste. इसकी वजह से lower caste जो था उनका exploitation होता देखने मिल रहा था. Therefore, caste system had become a major hindrance in the development of health, democratic and progressive society. तब ये caste system की वजह से सोसाइटी जो है वो properly progress नहीं कर पा रही थी. डेवलपमेंट हेल्थ वाइज, डेमोक्रेसी वाइज, प्रोग्रेसिव, हमें कुछ भी देखने नहीं मिल रहा था कि प्रोग्रेस अच्छे से नहीं हो रहा था सोसाइटी में. जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से डेवलपमेंट सोसाइटी में देखने नहीं मिल रहा था. Many psycho-religious reformers and organizations stepped forward to fight against these social practices. Organizations such as Brahma Samaj, Arya Samaj, Pratna Samaj, Ramakrishna Mission and reforms like Jyotiba Phule, Pandit Ramabai, Sri Narayan Guru, Priya Vivekanand, Mahatma Gandhi and many others strongly protested against its rigidity. तो ये सारे लोगों ने भी इन सारी चीजों पे वर्कआउट किया, लाइक कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होकर ये भी कि ये जो प्रथा थी, मतलब इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी. तो इन सारे लोगों ने भी इस पे वर्क करना स्टार्ट किया. मोस्ट रिफॉर्मर्स कंसीडर्ड द प्रिवेलेंट कास्ट प्रैक्टिसेस एंड अगेंस्ट ऑफ द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ वेदास एंड अदर स्क्रिप्चर्स. दिस कंसीडर्ड द कास्ट सिस्टम इज इर्रेशनल एंड अनसाइंटिफिक. तो इससे ये प्रूव होने लगा कि कास्ट सिस्टम जो हमने बनाई हुई है वो इर्रेशनल है और अनसाइंटिफिक है. वो साइंटिफिकली नहीं है, वो अनसाइंटिफिकली. They felt it was against the basic rules of humanity. अब वो लोग ये सोचने लगे कि ये क्या है कि बेसिक रूल्स ऑफ इसके अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटी के रूल्स के अगेंस्ट है. ह्यूमैनिटी जो इंसान में होनी चाहिए, एक पर्सन के दूसरे पर्सन के लिए जो भाव होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी जो भी होती है, तो उसके अगेंस्ट ही कास्ट सिस्टम को बनाया गया है. The untearing the relentless efforts of social reformers help people to become more tolerant towards each other. तो इस वजह से क्या होने लगा, लोग more tolerant towards each other, एक दूसरे से ज्यादा टॉलरेंट करना लगे. Social reforms help people. अब इसकी वजह से लोग को हेल्प मिलने लगी, लोग इससे यूज्ड टू होकर अब लोगों ने क्या किया, टू बिकम मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से ये चीज को समझकर अच्छे से व्यवहार करना स्टार्ट करने लगे. राइट, दिस इज ऑल अबाउट कास्ट सिस्टम. ये कास्ट सिस्टम, इसमें मेन टॉपिक तो यही था कि किस तरीके से डिफरेंट कास्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, कैटेगराइज्ड किया गया, ऑक्यूपेशन किस तरीके से लोगों का था, उसके बेसिस पे ये सारी चीजों को मेंशन किया गया. So here we have 6.2.3 the educational scenario के उस वक्त एजुकेशनल सिनेरियो किस तरीके से रहा होगा. 19th century की बात चल रही है यहाँ पे. In the 19th century many children, especially girls, were not sent to the schools. मतलब जिस तरीके से अभी मतलब both girl and boy दोनों को एक तरीके का इम्पोर्टेंस जो मिलता है, बट ये सिचुएशन पहले नहीं थी. पहले गर्ल्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, गर्ल्स को एजुकेशन भी इतना ही नहीं दिया जाता था, बॉयज को ही ज़्यादातर एजुकेशन दिया जाता था. तो उस वक्त गर्ल्स को स्कूल भेजने का अलाउड नहीं था, मतलब घर से गर्ल्स को अलाउड नहीं था कि वो स्कूल में जाए. एजुकेशन was imparted in traditional पाठशालास, madrasas, mosques and gurukuls. Religious education was imparted along with subjects like Sanskrit, grammar, arithmetic, religion and physiology. मतलब फिलोसॉफी, मतलब इन रिलीजियस कंटेंट भी उनको उसके साथ में सिखा दिया जाता था. पाठशाला चलते थे
मद्रासेस, मॉस्क्यू, गुरुकुल्स, इस तरीके से डिफरेंट जगह पे लोग जो बच्चे थे वो जाकर पढ़ा करते थे। तो उसमें वो लोग साथ साथ में सब्जेक्ट्स किस तरीके से, तो कई संस्कृत, ग्रामर, अरिथमेटिक, रिलीजियंस एंड फिलोसॉफी, ये चीजें उनको बच्चों को सिखाई जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड नो प्लेस इन द circulum. Many superstitious belief existed in the society. In certain communities, girls were not allowed to be educated. It was true that educated women would soon become widows after marriage. गर्ल्स लोगों को इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं दिया जाता था, उसका एक ये कारण उन्होंने बता रखा है। बट इन रियलिटी लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस was the root cause of social and religious backwardness among the Indians। तो इसके कारण से एक बैकवर्डनेस सोसाइटी में देखने मिलती थी। इंडियंस में बैकवर्डनेस कॉज ऑफ सोशल एंड रिलीजियस बैकवर्डनेस देखने मिली, ये था। बट इन रियलिटी लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस was the root cause of social and religious backwardness। एजुकेशन कम होने की वजह से ये रूट कॉज हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एजुकेशन एक रूट कॉज है सोशल रिलीजियस बैकवर्डनेस जाने के लिए। सो इट वाज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट लग रहा था। ऑल साइको रिलीजियस रिफॉर्मर्स वेदर हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स और पारसी aimed at a spread of modern education। ये सब लोग मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड कर रहे थे। They believed that education was the most effective tool to awake the modernization of the society। To modernize our society, सोसाइटी को ऊपर लाना है, सोसाइटी को मॉडर्न बनाना है, तो उसका एक उनका ये पॉइंट था कि अगर सोसाइटी के लोग अगर एजुकेटेड होते हैं, they believe, ये सोचते थे, वो मानते थे कि that education was the most effective tool। वो लोग ऐसा मानते थे कि एजुकेशन ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव टूल है जिसकी वजह से सोसाइटी को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ 19th century। सो हियर वी हैव 6.3.1 राजाराम मोहन रॉय। तो राजाराम मोहन रॉय कौन थे, उनके बारे में पूरा के पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया सोसाइटी में। So Rajaram Mohan Roy was born in Brahmin family of Bengal। He knew many languages and had read Quran, Bible and New Testament along with Hindu scriptures in great depth। राजाराम मोहन रॉय को बहुत सारी लैंग्वेज तो आती ही थी, बट उसी के साथ उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स, कुरान है, कुरान बाइबल को भी उन्होंने बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ है, उनको बहुत अच्छा नॉलेज उस चीज़ का था। लिबरल एजुकेशन exposed him to different cultures and philosophies। Deeply moved by a flight of his brother's widow who had been forced to commit sati, he was determined to uproot her social practices। मतलब उनके जो ब्रदर के विडो जो थे उनके लिए वो तब से बहुत ज़्यादा मूव्ड हुए, और वो चीज़ जो सती सिस्टम जो था उस चीज़ के उनको ये चीज़ ठीक नहीं लगती थी, उस चीज़ के लिए उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। लाइक ही वाज डिटरमाइंड टू अपरूट दिस सोशल प्रैक्टिस। ये सोशल प्रैक्टिस को वो अपरूट करना चाहते थे। दिस लीड हिम टू चैलेंज अदर अनफेयर सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट एट दैट टाइम। और उसी के साथ वैसे चलने वाली बहुत सारी जो ये सोशल प्रैक्टिसेस थे, सोशल और रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस नए तौर तरीके जो थे उन्हें वो चेंज करना चाहते थे कि जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे। He founded Brahma Samaj in 1828। He was the first person to take an initiative to the challenge the practices of sati and it soon became his lifelong crusade। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के इन्होंने वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को फाउंड किया, जो बनाया in 1828। और इसका इनिशिएटिव लिया कि लाइक सती सिस्टम इज नॉट एक चीज सही चीज नहीं है, इसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव करना स्टार्ट किया। He mobilized public opinion and cited the scriptures to show that this practice had no sanction in Hindu religion। उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग चीजों को इकट्ठा किया, अलग-अलग डेटा को कलेक्ट किया और ये लोगों के सामने रखा, बताया कि ऐसी कोई भी चीज हिंदू रिलीजन में नहीं है। In the process, he faced displeasure and immunity of the Orthodox Hindus। His efforts
he was supported by the Governor General of India. बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए ये जर्नी में, कि जब इतनी बड़ी चीज आप लोगों के सामने रख रहे हो तो आपको बहुत सारे लोगों का अगेंस्ट भी उनके सारी चीजों को भी समझना होता है, जानना होता है और उनके सामने अपनी चीज भी रखनी होती है। तो बहुत सारा अपोजिशन भी उनको मिला, बहुत जगह से उनको सपोर्ट भी नहीं मिला, बट दे गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया Sir William Bentinck. A law was passed in 1829 making such illegal and punishable. He also made efforts to advocate widow remarriage and condemned child marriage. मतलब उन्होंने जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक लॉ पास किया, उनको एक अच्छा एक सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नर जनरल जो थे तो उन्होंने 1829 में एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग सती इज इलीगल, ये एक इलीगल चीज है और अगर ऐसा कोई करता है तो उससे वो पनिशेबल होगा, उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। फिर एक रीमैरिज ऑफ विडो, ये भी एक नई चीज स्टार्ट की गई। अनमेरिड चाइल्ड मैरिज, ये भी चीज के ऊपर वर्क किया गया। ही रिप्रेजेंटेड अ सिंथेटिक synthesis of eastern and western thoughts and authority on the Vedas, Vedants and Upanishads. He also took up the best in all the religions as he was well versed in the scriptures. उनको इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज होने की वजह से वो इस पे अच्छे से वर्क भी कर पाते थे। He advocated the importance of Vedas in the reforming religion and upheld the fundamental unity among the religion. अब इन सारों का सार उन्होंने बताया कि इन शॉर्ट ये सभी डिफरेंट धर्म और रिलीजन जो है इन सभी का सार एक ही है, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ यूनिटी, ठीक है, किसी भी तरीके से यूनिटी among all the religion लाना। He held that all the principles ancient texts of Hindus purged monotheism, एक तो है worship of one god and opposed polytheism, जिस belief in more than one god, एक god से ज्यादा हम दूसरे gods को भी मान सकते हैं, right? He was the critical of idol worship and observed of meaningless rituals. He strongly advocated the learning of English language, literature, scientific advancement and technology to modernize India. इतनी सारी different parts में उन्होंने वर्क इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस किया, लिटरेचर पे फोकस किया, साइंटिफिक एडवांसमेंट करना चाहा एंड टेक्नोलॉजी टू मॉडर्नाइज इंडिया, हमारी सोसाइटी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया जाए। He maintained an English school in Calcutta at his own cost. खुद की कॉस्ट पे खुद ने ही पैसा लगाकर एक इंग्लिश स्कूल भी स्टार्टअप की गई। सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स and philosophy were also taught among other subjects के साथ ये दो सब्जेक्ट्स भी उन्होंने स्टार्ट किए। Vedanta College was opened in 1825. Rajaram Mohan Roy helped in the opening of Hindu College in Calcutta for higher learning. हायर लर्निंग के लिए एक हिंदू कॉलेज भी स्टार्टअप किया गया, उसके ओपनिंग में भी राजाराम मोहन रॉय जो थे उन्होंने हेल्प की। तो दिस इज ऑल अबाउट राजाराम मोहन रॉय। आप इस टॉपिक को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से हमें और थोड़ा नॉलेज मिले। So here we have new topic 6.3.3 स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। The आर्य समाज founded by स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज जो था वो दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने फाउंड किया in 1875. Undertook the task of reforming Hindu religion in North India. He considered Vedas to be infallible and the foundation of all knowledge. वेदास को हर एक नॉलेज का कहा गया फाउंडेशन है, हर एक नॉलेज का फाउंडेशन है वेदास। He rejected all those religious thoughts which were in conflict with Vedas. जो भी वेदास को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है उन सारी की सारी रिलीजियस थॉट्स को निकाल दिए। He believed that every person had the right to have direct access to God. हर एक पर्सन का राइट है कि वो डायरेक्टली गॉड की कांटेक्ट में रहे, राइट, डायरेक्टली गॉड को प्रे करे। He started the Sudhi movement to bring back those Hindus who had converted to Islam and Christianity. सत्यार्थ प्रकाश was his most important book. उनकी जो बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, ये एक बुक उन्होंने खुद लिखी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं आर्य समाज एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म्स एंड वर्क टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन,
ठीक है, आर्य समाज सोशल रिफॉर्म्स एंड वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की जो कंडीशन थी उस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये आर्य समाज को बनाया गया और उसके लिए वो वर्क करते थे सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए, ठीक है। इफ फॉर अनटचेबिलिटी द रिजिडिटीज ऑफ हेरिडिटी कास्ट सिस्टम एंड प्रोमोटेड सोशल इक्वलिटी, ये चीजों को निकालकर, अनटचेबिलिटी वाली चीजों को निकालकर, मतलब ये जो एक वे था लाइक अनटचेबिलिटी, लाइक कुछ लो कास्ट के लोग होते तो उनको छूना वो भी गलत था, लाइक ये सारी जो चीजें थी, ये सारी चीजों को निकालकर सोशल इक्वलिटी बनी रहे, इस चीजों पे फोकस कर रहा। द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन विच ही wrought and purged made his ideas accessible to the people of northern India. Arya Samaj also had a major role to people in the national movement as it included a spirit of self-respect and self-reliance among the people. Self-respect और self-reliance रहे लोगों के, लोग इस पे समझे, इसे जाने और इसे करें। आर्य समाज also had a major role to play in national movement. ये nationally उन्होंने ये चीज चलाई as it is included inculcated a spirit of a self respect, खुद की self respect की एक spirit जगाने का काम किया। The role of Arya Samaj was commendable in promoting education among the mass. बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में वो education को promote करना, right? Some of the Swami Dayanand's followers later started a network of schools and colleges. जो उनके followers थे, उन्होंने network के साथ एक school और colleges पे work करना start किया, called DAV, Dayanand Anglo-Vedic, in the country to impart education on Western lines without compromising on a Vedic teachings. Vedic teachings के साथ compromise किए बिना ही हम लोग ये English जो Western lines थी उसको करना start किया, उसको भी यूज करना स्टार्ट किया। They encourage teaching of English and modern science along with Sanskrit and Vedic education. वैदिक ही एजुकेशन नहीं, इसके साथ साथ संस्कृत और वैदिक के साथ साथ उन्होंने मॉडर्न साइंस और इंग्लिश पे भी इतना ही फोकस किया। This is all about दयानंद सरस्वती कि इन्होंने ये सारी चीजें की, ठीक है। So here we are 6.3.4 Ramakrishna Paramhans and Swami Vivekananda. Ramakrishna Paramhans 1836 to 1886 highlighted the initial unity of religions and the need to lead a spiritual life. ठीक है, unity between religions, different religions में एक unity बनी रहे and the need to lead a spiritual life, एक need के spiritual life को lead करने के लिए। He believed that the different religions of the world are only a different way to reach the same God. God एक ही है, but different religion, different ways है कि वो God तक पहुंचा जाए। स्वामी विवेकानंद 1863 to 1902 was his foremost discipline. Vivekananda was the first spiritual leader who thought beyond religious reforms. ठीक है, spiritual leader थे, right? He felt that Indian mass needed a circular as well as a spiritual knowledge to empower them to believe in themselves. लोग खुद के अंदर ही believe करना start करें, इस वजह से वो ऐसा मानते थे। इस वजह से वो बहुत सारे लोगों को एक spiritual knowledge दिया करते थे to empower them to believe in themselves, वो खुद के अंदर ही believe करें, इस वजह से विवेकानंद established the Ramakrishna mission after the name of his guru Ramakrishna Paramhans. ठीक है, उन्होंने ये रामकृष्ण मिशन भी स्टार्ट किया। Thought his speeches and writing he brought out the sense of Hindu culture and religion. He believed in the spirit of Vedanta and initial unity and equality of all religions. Unity and equality in every religion, हर एक religion में equality maintain रहे। He laid stress on the removal of religious, superstitious, obscurantism and outdated social customs. He tried to remove caste rigidity, untouchability. He motivated the people to respect women, while he himself worked for women's upliftment and education. Vivekananda attached primary importance to the removal of ignorance
among the people. उन लोगों ने ये चीजों को भी निकाला, अनटचेबिलिटी को निकाला, अनवांटेड चीजों को सबको निकाला, कुछ रिजिड कास्ट सिस्टम जो था उसको भी उन्होंने कुछ साइड किया, लाइक जो चीजें फॉर पर्टिकुलर ह्यूमन जो चीज जरूरी है उस चीज पे उन्होंने फोकस किया। वुमेन्स को रिस्पेक्ट करना, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन देने के लिए बहुत उन्होंने वर्क किया। ये उन्होंने प्राइमरी एक इंपॉर्टेंस बताया, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस अमंग द पीपल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद। 6.3.6 ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले फ्रॉम महाराष्ट्र वर्क टू अटेन इक्वल राइट्स टू पीसेंट एंड लोअर कास्ट। लोअर कास्ट जो लोग थे उन लोगों के लिए उन्होंने वर्क किया कि हर एक को इक्वल राइट्स मिले। He and his wife Savitrabai Phule are most known for their efforts to educate women and the lower caste as well as the mass. वुमेन्स जो थे लोअर कास्ट के, उन लोगों को एजुकेट करने के लिए वो जाने जाते थे। वो लोग, उनका काम यही था कि वो लोअर कास्ट लोगों के वुमेन्स जो थे उन लोगों को वो एजुकेशन दे, और बहुत दूसरे लोगों को भी। He first educated his wife, after which both of them opened a school for girls in India. सबसे पहले उन्होंने उनकी वाइफ को यानी सवित्राबाई फुले को ये नॉलेज दिया, एजुकेशन दिया, फिर वो दोनों ने मिलकर एक स्कूल स्टार्टअप किया। Both them opened a school for girls in India. फिर गर्ल्स के लिए उन्होंने स्कूल ओपन की in the August 1848. Took up the cause of women and started a girls school in Pune in 1851. पुणे में उन्होंने 1851 में स्कूल स्टार्ट किया। He is also remembered for his efforts towards promoting widow remarriage. विडो के रीमैरिज के लिए भी इन्होंने वर्क किया, इसके लिए भी उन्हें जाना जाता है, प्रमोट किया, लोगों को प्रेरित किया कि ये चीज भी करवानी चाहिए, राइट। इन सितंबर 1837 ज्योतिराव along with his followers formed the सत्य शोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, with the main objective of liberating the lower caste and protecting them from exploitation and erotics. He was popularly known by Jyotiba. लोगों को, जो लोअर कास्ट लोग थे, उन लोग को सपोर्ट मिले, उन लोग को हर एक उनका राइट मिले, इसलिए उन्होंने वर्क किया, राइट। उनकी जो राइट्स थे उसको एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए, उनके हक को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, राइट, इसलिए उन्होंने वर्क किया। ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सवित्राबाई फुले।